Hello everyone. So I welcome you all to another session of spoken English classes, and today I'm going to focus on common phrases in English. क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा ग्रामर आनी ही ज़रूरी नहीं है. कुछ एक ऐसे सेट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अगर आप उनको भी बोलते हो तो यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ. आप अपनी बात रख सकते हैं. ठीक है. सो टुडे आई एम टेकिंग 15 कॉमन फ्रेजेस and the magical words. You know what are the magical words? Please, excuse me, I am sorry, may I, है ना? These are the magical words, right? And they make your life easy, right? So English is a very polished language, right? And in that means that to express yourself there are set of words which can, in very few words you can express yourself. सपोज आप एक रूम में हैं जहाँ पर सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो. यू नो द बेसिक इंग्लिश, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो अब हम लोग ऐसा कुछ फ्रेजल यूजेस करेंगे. कुछ हम लोग नए जो इंग्लिश में फ्रेज कॉमनली यूज करे जाते हैं, कुछ नई चीज पढ़ेंगे. और आज मैं आपको मोस्ट कॉमन 15 फ्रेजेस जो हैं इंग्लिश में, आज हम वो डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी, could you please tell me the way to the airport? Excuse me, what is the way to the railway station? Excuse me, what's the time? Right? एक ये यूजेज हो गया कि आपने किसी को रोक कर पूछा, कोई अपने काम में बिजी है, आपने डिस्टर्ब किया और उसके लिए आप you are not so happy that you're disturbing somebody, so in a very polite way you asked. Okay. दूसरा, there is a group discussion going on. घर में लोग बैठे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, आप जॉब कर रहे हो, वहाँ डिस्कशन चल रहा है, आपके क्लास में डिस्कशन चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है, wherever, right? And you want to put in, you want to join in between, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे हो, तो आप एकदम से दूसरे को काट करके नहीं बोलेंगे. We'll say, excuse me, but I slightly disagree with you. Excuse me, but I feel this is the correct answer or this is the correct way. So आपने अपनी presence feel कराई. Excuse me बोलकर आप किसी conversation के बीच में आ गए. ठीक है. So that is how we use excuse me. Then commonly you know it that अगर आप भीड़ में जा रहे हो और लोगों को रास्ते से हटाना है, या आप जा रहे हो, somebody standing in your way, तो आप कहोगे excuse me, right? So you said excuse me और वो बंदा okay, ठीक है, okay. So you said thank you. Okay, so this is how we use excuse me. Next is I am sorry. I am sorry. Sorry का मतलब ही ये होता है कि you are not going to repeat it, right? एक तो ये यूजेज हो गया, you hurt somebody or you spoke it rudely and you are sorry about it, तो you just simply said I am sorry. ठीक है. इसके अलावा आपने किसी को बोला कि you meet me there at 1:30 and you are late by say 20 minutes, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए या जो भी रीज़न हो, genuine reason. So you said I'm sorry for waiting you, or I'm sorry to keep you waiting, I'm sorry for coming late, I'm sorry for the delay, right? So this is how you can say, है ना? I am sorry but it's not clear to me, could you please explain it to me again, right? So this is how very politely you can request for something, or you can be actually apologize, say sorry, right? Next is never mind. कोई बात नहीं, never mind, it's okay, it happens, never mind, कोई बात नहीं. ठीक है. सो दैट्स दी नेवर माइंड. आपने किसी बात का बुरा नहीं माना, कोई छोटी सी चीज़ थी, बातों को ख़त्म किया जाता है.
ठीक है. So somebody said sorry to you and you said okay, never mind, it's okay, it's okay, right? Next is sorry to bother you. ये भी काइंड ऑफ जो अभी तक हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं उसी का है. सॉरी टू बॉदर यू, बट कुड यू प्लीज हेल्प मी. सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज वॉच माई साइकिल फॉर 2 minutes, आई एम जस्ट कमिंग. हाँ, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू वॉच माई बैग, आई विल बी बैक इन 2 minutes. सो you are asking for a favor. Sorry to bother you, but what's the time, right? कोई बिजी है, पढ़ रहा है और आपके पास मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, टाइम देखना है. सॉरी टू बॉदर यू, ठीक है, करके आप अपनी बात कर सकते हैं. देन थिंग्स हैपन, रिलैक्स, डोंट वरी. ओके, मे बी आप घर में हो और something is damaged or broken, your toy is broken, right? Or your game is spoiled, or something is ruined, something spilled on your project or something like that, and you're very upset. So it's like things happen, relax, right? जरूरी नहीं कि हर चीज सही हो, चीजें गलत भी होती. थिंग्स हैपन, इट्स ओके. या यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड ऑल दी फाइल्स गॉट डिलीटेड, सो आई नो यू हैव टू वर्क हार्ड अगेन, बट इट्स ओके. किसी ने जानबूझ के नहीं करा है. सो थिंग्स हैपन, रिलैक्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी से डोंट वरी. थिंग्स हैपन, डोंट वरी, इट विल बी ऑल राइट, राइट? नेक्स्ट इज that sounds great, that sounds perfect, that sounds awesome. मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, right? So suppose your friends are making a plan that they are going to have a get together on coming weekend, right? So you are agreeing to it. So what will you say? That sounds okay, that sounds perfect, that sounds awesome. आप लोगों ने प्लान किया कि साइकिलिंग टूर है और मॉर्निंग में आप लोग साइकिलिंग करने जाओगे, साथ में योगा करोगे, या साथ में स्विमिंग करने जाओगे, या साथ में बैठ के कंबाइंड स्टडी करोगे. वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, समबडी सजेस्टेड एंड यू आर अग्रीइंग टू इट. आप उस पर रेडी हो. सो यू विल से दैट साउंड्स परफेक्ट, दैट साउंड्स ऑसम, राइट? सो एक्सप्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट. अच्छा, whenever we meet someone, I'm just repeating, how do we meet? Hi, how are you? So the other person says, I'm fine, how about you? So the reply comes, I am also fine or I am also good. 2 लाइन हो गई. अब how's it going? How is it going? That's the correct. But आप सुनिए मैं कैसे बोल रही हूँ. How's it going? है ना, इसको हम शॉर्ट कर देंगे. How is it going? How's it going? How's it? So I've made it how's it. How's it going? Right? So it goes like this. Then क्या हाल है, कैसा जा रहा है? How is everything? So how's it going? How's it going? Right? Then we have लॉन्ग टाइम नो सी. बहुत दिन बाद दिख रहे हो भाई, है ना, तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे? हाय राहुल, लॉन्ग टाइम नो सी. हाय पीयू, लॉन्ग टाइम नो सी. कहाँ थी इतने दिन तक, है ना, कि आप किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हो. हाय निधि, लॉन्ग टाइम नो सी. ठीक है, तो आपने कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट करी कि भाई बहुत दिन के बाद दिख रहे हो या दिख रही हो. सो इट इज लॉन्ग टाइम नो सी. अब इसी में ही कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन. व्हाट हैव यू बीन अप टू? व्हाट हैव यू बीन अप टू? क्या चल रहा है ना, आजकल कहाँ थी, क्या हो रहा है, हाउ इज लाइफ, ये सारी चीजें. व्हाट हैव यू बीन अप टू, क्या क्या कर रही हो आजकल, वेयर आर यू, right? Then we have
then Nidhi or say Rahul will say, can't complain. Means life is all good, it's all right, it's all fine. Can't complain, matlab it's all good. But it's all good, all okay से better सुनने में क्या आ रहा है? Can't complain, all is well, right? So expressions, the correct expressions are important, बहुत ज़रूरी हैं. Next we have is that's a good one. आप एक ग्रुप में फ्रेंड्स के संग में बैठे हो, फैमिली में बैठे हो, देयर इज अ फैमिली गेट टुगेदर एंड समबडी क्रैक्ड अ वेरी विटी जोक, राइट? आजकल हम लोग ग्रुप में मीम्स या अच्छे मैसेजेस करते हैं. सम मैसेजेस आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन वॉट एवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. मीम्स आती हैं, है ना? तो आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो ऐसी बातों को? दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन. बहुत बढ़िया था, मजा आ गया, ठीक? सो दैट्स अ गुड वन, राइट? नेक्स्ट इज इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. ओके, somebody helped you, right? So how can you say that? It's very kind of you, है ना? आप जा रहे थे या आप सपोज पार्टी में किसी ने अपनी प्लेट उठाई, आपके लिए भी एक प्लेट उठा के दे दी. सो इट्स सो नाइस ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. somebody helped you, है ना? सो आपके पास बहुत सारे बैग्स थे, आपको उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो somebody said okay give me a bag. So that's so kind of you, it's so kind of you, that's so nice of you, thank you, है ना? So this is how you can show your appreciation and you're thankful for it. Okay, yeah. Similarly, what's going on, ये ऊपर वाले सेंटेंस से ही मिलता जुलता है. What have you been up to, what's going on, है ना? या आप सपोज करें रूम में पहुंचे और बहुत सारे लोग बैठे हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग, समथिंग इज हैपनिंग. तो आप बिल्कुल से जाके पूछोगे ना, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? मीन्स यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वट एवर इज हैपनिंग देयर, ठीक है? सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. नाउ डोंट टेक इट टू हार्ट, मीन्स डोंट माइंड. अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एनीथिंग, आपने एक्सपेक्ट करा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, और ऐसा नहीं हुआ. कोई बात नहीं, डोंट टेक इट टू हार्ट. दिल से मत लो यार, कोई बात नहीं है, फिर से दे के निकल जाएंगे. दैट शुड बी द एटीट्यूड, ठीक है? डोंट माइंड, इट्स ओके. यू वांटेड टू गेट समथिंग डन, बट वो नहीं हो पाया. बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यू एक्सपेक्टेड दैट यू विल स्कोर 39 on 40 or 40 on 40 and you got 35, 34. इट्स ऑल राइट, डोंट टेक इट टू हार्ट. ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है ना? या आप रेस लगा रहे थे, आप फर्स्ट नहीं आए, आप सेकेंड आ गए, फोर्थ आ गए, तो भाई फर्स्ट तो कोई एक ही आता है ना. Everyone cannot come first. So don't take it too hard. Never mind. We'll do something else. That should be the attitude, right? Next is okay. इसके बहुत सारे वर्जन्स आपको पता होंगे. मैं सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग या पार्डन मी. आप एक ग्रुप में बैठे हो, आप क्लास में बैठे हो और आपने सुना नहीं, या कोई कुछ बोल रहा था और आपका ध्यान 2 मिनट के लिए कहीं और चला गया था, है ना? तो आप कोई बात नहीं, इट हैपेंस. तो वेरी पोलाइटली, सॉरी आई डिडंट कैच, मैंने सुना नहीं. सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, राइट? So this is how sorry I wasn't listening. Yeah, pardon me, could you please repeat it again? I wasn't listening, right? So these are certain words, these are certain phrases which can make our life easier. It will definitely create a very good impression, and of course everyone wants to create a good impression and want their work to be done. So fine, आप बहुत polite हैं, आप बहुत polished हैं, आपका काम क्यों नहीं होगा? Just use these magical words. All right, with this I leave you here
and keep talking in English, keep thinking in English. Stay safe. Thank you.